dynamic systems development method. This is the again one more development process which is also called as Atten development method. Alright, so we already have seen spiral process model, right? Spiral development model. उसमें क्या हमने देखा कि वो हर एक लाइक यू नो वन सर्कल रिप्रेजेंट्स वन इटरेशन. So spiral is a iteration based model, right? Similarly, this dynamic system development model means Atten model is also the iteration based model. Okay, so means you develop the product in iterations. So you first in one iteration you take small amount of requirements, then you develop those requirements, release it to customer. Again in next iteration or even you can say increment, you add some more requirements, you develop it, deliver it to customer. Again in next one you add some more and then again develop it and release it to customer. Okay, so dynamic systems development model means Atten model is also the incremental model. Okay, iteration based development. All right, so now this is a structure of dynamic system development model. There are 4 stages: feasibility, foundations, explorations, engineering and then deployment. Okay, now in first phase there is feasibility and foundations. Both of the phases are in the both of the steps are in the same phase. Okay, we know feasibility is what, कि हम यहाँ पे feasibility में decide करते हैं कि हमारे जो requirements है, नहीं तो हमारा जो product है वो worth है या नहीं है. Okay, हम लोग cost benefit analysis करते हैं, right? We already have seen it. और यहाँ पे हम लोग feasibility में business case भी हम create करते हैं. Okay, now foundation में क्या करते हैं? Foundation में we understand the scope of the work properly. Okay, we deep study करते हैं और हमारा क्या हमें exactly करना है that we study here. Okay, how it will be carried out, कैसे कर हम लोग करेंगे, कौन करेगा, कब करेंगे, complete planning यहाँ पे होता है in foundations phase. So we get ready to execute our project. Okay, next is exploration phase. Exploration में requirements investigate किए जाते हैं और वो डिज़ाइन में कन्वर्ट किए जाते हैं. सो यहाँ पे डिज़ाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट होता है एक्सप्लोरेशन फेज में. नेक्स्ट फेज इज इंजीनियरिंग फेज. इंजीनियरिंग में ऑफकोर्स डिज़ाइन को सिस्टम में डेवलप करते हैं, राइट? सो ऑपरेशन सिस्टम इंजीनियरिंग में बनता है. सो कोडिंग होता है इसमें. ओके, देन नेक्स्ट इज डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट में ऑपरेशनल सिस्टम जो होता है, जो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, वो हम लोग रिलीज करते हैं. अगेन once suppose in first iteration 10 requirements are considered, then again next iteration again 10, again next iteration 10 requirements and so on. So this cycle keep on going, okay, until the final operational system or operational product that customer wants is ready. Then after deployment it goes to customer. Okay, so this is how Atten method works. All right, so this is a structure of Atten method and these are the different phases or stages of Atten method. Okay, now Atten method is time boxed. Time boxed means particular limit उसको दिया जाता है कि एक इटरेशन को सपोज 2 to 6 वीक्स दिए जाते हैं. सो इट वेरीज. इफ़ रिक्वायरमेंट्स बहुत ही कम है, अगर रिक्वायरमेंट्स बहुत ही कम है फर्स्ट इटरेशन में, तो सपोज 2 वीक उसको दिए गए हैं डेडलाइन के लिए. ओके, अगर रिक्वायरमेंट्स से 50 है, 50 रिक्वायरमेंट्स ये फर्स्ट इटरेशन में लिया हुआ है, तो उसको 6 वीक्स दिए जाएंगे. तो लाइक यू नो डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी रिक्वायरमेंट्स यू हैव, ये टाइम बॉक्स मैटर होता है. ओके, सो Atten मेथड हमेशा टाइम बॉक्स्ड होता है कि उसको हमेशा डेडलाइन होती है. हर एक इटरेशन को एक डेडलाइन दी जाती है और उस डेडलाइन में वो पूरा सब रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होने ही चाहिए.
ओके अगर नहीं हुए हैं तो लेस इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो है, जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स नहीं है, वो हम लोग नेक्स्ट इंक्रीमेंट में भी डाल सकते हैं, लेकिन द प्रोडक्ट शुड बी रिलीज ऑन टाइम. सो अगर हमें बताया गया है कि 6 वीक्स में रिलीज है तो 6 वीक्स में ही रिलीज होना चाहिए, लेकिन उसमें अगर पूरा डेवलपमेंट हुआ नहीं है, सब सपोज 50 रिक्वायरमेंट्स डेवलप नहीं हुए हैं, तो जो मेन रिक्वायरमेंट्स है वो डेवलप करके वो रिलीज कर देते हैं, और जो लेस इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, लेस इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है, वो नेक्स्ट इटरेशन में पोस्टपोन कर देते हैं. लेकिन रिलीज तो जो हमें डेडलाइन दिया है उस डेडलाइन में होता ही है. ओके दिस इज अ वन वेरी इंपॉर्टेंट fact of Atten method. Okay, now on what basis importance of requirements are decided? उसको बोलते हैं मॉस्को क्लासिफिकेशन. ये मॉस्को क्लासिफिकेशन एक मेथड है जिससे हम लोग रिक्वायरमेंट्स का इम्पोर्टेंस कैटेगराइज करते हैं. ओके सो एक 4 टाइप के रिक्वायरमेंट्स हम लोग डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं. मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव एंड वोंट हैव. अभी मस्ट हैव क्या है? ऐसे रिक्वायरमेंट जो हमें इस इटरेशन में रिलीज करने ही है. शुड हैव मीन्स हमें करने चाहिए, लेकिन सिस्टम और प्रोडक्ट उसके बिना भी चल सकता है. ओके सो द सिस्टम कैन ऑपरेट विदाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो. दोज रिक्वायरमेंट्स आर शुड हैव. ओके कुड हैव क्या है कि जो रिक्वायरमेंट्स हम लोग डिले भी कर सकते हैं. ओके हमें थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन वो हम लोग डिले भी कर सकते हैं, मीन्स नेक्स्ट इटरेशन में डाल सकते हैं. एंड वोंट हैव इज these requirements are postponed to another release. Okay this is what the Atten method is. ये Atten method एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है, डेवलपमेंट अप्रोच है. ओके तो इसके लिए इस पे 8 प्रिंसिपल्स डिफाइन किए गए हैं. So these are 8 principles which are listed here. ये 8 principles क्या है? Okay, let us see that. First principle है focus on business need. इसका मतलब है कि हर एक टीम मेंबर ने और हर एक स्टेक होल्डर ने अपने बिजनेस नीड पे फोकस करके ही काम करना है कि हमें क्या अचीव करना है, व्हाट इज आवर नीड फॉर टू वर्क, है ना. तो वो हम लोग फोकस करके ही यहाँ पे हर टीम मेंबर, हर स्टेक होल्डर काम करता है. ओके डिलीवर ऑन टाइम. हमने अभी पढ़ा कि एटन मेथड इज टाइम बॉक्स्ड. तो ये जो भी टाइम दिया गया है आपको वो पर्टिकुलर इटरेशन के लिए, उसी टाइम में हम आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना है. कोलैबोरेट मतलब वन टीम कल्चर मीन्स हर एक आदमी जो भी इस प्रोजेक्ट पे काम करता है, वो इटरेशन पे काम करता है, दे कोलैबोरेट विथ ईच अदर, मीन्स दे कोऑपरेट और कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को. ओके दे प्ले एज अ वन टीम एंड दे वर्क एज अ वन टीम. ओके नेक्स्ट इज नेवर कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी. इसमें बेस्ट क्वालिटी दी जाती है. कैसे देंगे कि हर एक फेज के बाद और हर एक काम के बाद पूरा थोरफ टेस्टिंग किया जाता है. थोरफ टेस्टिंग करने के बाद ही वो प्रोडक्ट नेक्स्ट स्टेज पे जाता है. दैट इज नथिंग बट अचीविंग गुड क्वालिटी. डेवलप इटरेटिवली. सो मैंने आपको ऑलरेडी बोला ये एटन मेथड जो है वो इटरेटिव डेवलपमेंट है. ओके so small requirements, like chunk of requirements are taken in one iteration. Okay next it build incrementally from firm foundations, means हम लोग वो एक्सप्लोरेशन फेज में प्रोटोटाइप बना सकते हैं और उससे हम लोग इंक्रीमेंटली प्रोडक्ट बना सकते हैं. ओके सो स्टेप बाय स्टेप वी प्रोग्रेस, incrementally we build our product, step by step we keep on adding the requirements. Okay communicate continuously. complete team अपने स्टेक होल्डर्स और डेवलपर्स, टेस्टर्स, डिजाइनर्स, एवरीबडी कम्युनिकेट विथ ईच अदर कंटिन्यूसली, एज वेल एज जो टीम होता है वो टीम भी
कस्टमर्स से कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करता है, थ्रू वर्कशॉप हो, नहीं तो उसको प्रोटोटाइप दिखाए जाते हैं, उनका फीडबैक लिया जाता है, ऐसे सब कम्युनिकेशन बहुत ही कंटिन्यूसली एक दूसरे से करते हैं, सो दैट वी कैन अचीव द प्रोडक्ट ऑन टाइम एंड विथ गुड क्वालिटी. डेमोन्स्ट्रेट कंट्रोल मतलब हर एक स्टेक होल्डर को कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट का क्या चल रहा है, कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बारे में रिपोर्टिंग is very important. Okay, so everybody is informed about the progress of the development. That is nothing but demonstrate control कि हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, आर वी ऑन द ट्रैक, आर वी ऑन ट्रैक, और आर वी डिलेड, और आर वी प्रोग्रेसिंग वेल. सो सब कुछ ये जो रिपोर्टिंग है, जो वो रिपोर्ट वेरी फ्रीक्वेंटली स्टेक होल्डर्स को दिए जाते हैं. दैट इज नथिंग बट डेमोन्स्ट्रेट कंट्रोल. Alright, so these are the 8 principle for Atten method. Okay, so Atten method में basically क्या क्या किया जाता है. एक तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, हर एक स्ट्रक्चर में लाइक ये पूरे स्ट्रक्चर में डिफरेंट फेजेस है, 4 फेजेस आर देयर, राइट. फिजिबिलिटी, देन फाउंडेशंस, देन what was that, exploration, then engineering, deployment. Okay, once deployment is done, like deployment is nothing but giving the product to the customer. Okay, after that we have seen that it is time boxed. Okay, time boxed है, हमने पढ़ा कि टाइम में उसको डिलीवर करना है. और बाद में हमने पढ़ा कि 8 कोर प्रिंसिपल्स उन्होंने डिफाइन किए हैं एज पार्ट ऑफ एटन डेवलपमेंट मेथड. Okay, so following all these we can inculcate the discipline in iterative development. So ये basically Atten principle is bringing more discipline to the iterative development method. Okay.